हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह. आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम लाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज. आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो पहली दफ़ा इस सेशन में आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ये चैनल आपको डॉक्टर बनाने में सक्षम है. और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा. जो भी मैं पढ़ाऊँगा इसके नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता रहूँगा. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा. इससे आप जुड़ सकते हैं. मैं अकेडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे फ्री में पढ़ाता हूँ, तो उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं. तो स्टार्ट विद द केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन. देखिए, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि ये हार्मोन के द्वारा होता है. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. Nervous system responsible for the fast coordination, while the endocrine system show the slow coordination. Nervous system utilize the neurotransmitter and endocrine system utilize a hormone. Thomas Edison, who diagnosed the Edison disease for the first time, and they are called father of endocrinology. Endocrine develop in first in orthopoda, and endo का मतलब होता है अंदर, क्रेनिटिन मतलब सिक्रेशन, अंदर वाले सेल्स को सिक्रीट करते हैं. Basically, hormone transport directly into the lymph or venous blood to the target tissue, and often they are located away from the site of action. कहीं और एक्शन हो रहा है और हार्मोन कहीं और है. जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में है, उसका एक्शन टेस्टिस और ओवरी में देखा जाता है. तो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच आल्सो कॉल्ड द डक्टलेस ग्लैंड which lack the duct and release their secretion directly into the blood and lymph. Hormone they take by the specific organ from the blood circulation and initiate a particular metabolic changes. So what is the difference between nervous system and endocrine system? It receive and send the information in the form of electrical impulse. Endocrine system is receive and send the information to the form of chemical called hormone. They response very fast and this response is very slow. नर्वस सिस्टम का फास्ट होता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, एंडोक्राइन लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है. सो हार्मोन वर क्लासिकली डिफाइंड एज द केमिकल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इन द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट देम इनटू द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी. हार्मोन इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट्स अ नॉन न्यूट्रिएंट पार्ट. इससे न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलता है. विच एक्ट एज द इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस द ट्रेस अमाउंट. द प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन, द हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय द लिविंग ग्लैंडुलर सेल्स and some other are diffuse tissue and cells. These are released directly into the blood and they are required for the small quantity. These are not providing energy and building blocker because they are not providing the energy, and they are highly specific. So what is the function of endocrine, exocrine? Endocrine, they are ductless. They are secretion directly into the lymph or venous blood, while the exocrine, they have a duct and their secretion into the cavity. So how the hormone can be action? Hormone do not their effect directly into the most of the reactions, and they are usually receptor through the receptors. So on the basis of they classified as a extracellular receptor or intracellular receptor. Extracellular receptor, they have a protein, peptides, glycoprotein, amino acid derivative, or except the thyroxine. This hormone has a large size, so they cannot cross the cell membrane. Intracellular, steroid, thyroxine, these are very small, tiny. They are lipid soluble. They can cross the cell membrane. They act on the nucleus. So they classify the hormone on the basis of chemical nature: peptide, polypeptide, and protein hormone. Insulin, glucagon, thyrocalcitonin, protein hormone, hypothalamic hormone, steroid hormone, cortisol, testosterone, estradiol, progesterone, iodothyroxine, thyroid hormone, T3 and T4. So how can the hormone is act? लेट सपोज दिस इज FSH, ये रिसेप्टर है हमारा, तो ये रिसेप्टर पे आके बाइंड होगा, देन फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, रेस्पॉन्स जनरेट होगा, दे जनरेट द सेकंड मैसेंजर इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक AMP एंड कैल्शियम. ये क्वेश्चन आया हुआ है. बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा और काम होगा. तो हार्मोन विच इंटरेक्ट द मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल but generate a secondary messenger in the form of cyclic AMP. Hormone bind the receptor and form a hormone receptor complex. जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजाओं का आपने मूवी देखा होगा कि राजा से कोई डायरेक्ट नहीं मिलेगा, जाके लेटर देगा, फिर राजा पढ़ेगा, फिर उसको अनुमति मिलेगी. ऐसे ही है कि अंदर ये घुस नहीं सकता है, साइक्लिक AMP से अपना इम्पल्स भेजेगा, अपना सूचना भेजेगा. कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ द रिसेप्टर्स.
The cytoplasmic part of receptor then produce secondary messengers, cyclic AMP, calcium cyclic AMP and IP3, which activate an existing enzyme system of the cells and they operate the biochemical reaction in the cells. Thyroxine has a receptor in both the cytoplasm and the mitochondria, which also alter the rate of cellular respiration. ये हार्मोन देखिए इतना छोटा होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर चुका है, सीधा ये न्यूक्लियस के पास जाके बाइंड करेगा और mRNA प्रोटीन वगैरह इससे बनेगा. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करें तो हाइपोथैलेमस विच इज कॉल्ड सुपर मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल द मास्टर ग्लैंड विच इज पिट्यूटरी. हाइपोथैलेमस इज अ बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफेलॉन. दे रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन. तो दे सिक्रीट टू टाइप ऑफ हार्मोन, वन इज रिलीजिंग हार्मोन, वन इज इनहिबिटिंग हार्मोन. जब वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी हार्मोन से कुछ काम करवाएगा. जब वो इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करेगा तो पिट्यूटरी हार्मोन को कहेगा कि तुम हार्मोन बनाना रोक दो और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन बनाना रोक देगा. जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग है तो इससे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और गोनाडोट्रोपिन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसए और एलएच प्रोड्यूस करना शुरू किया. सोमैटोस्टेटिन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा जिससे ग्रोथ हार्मोन रुक जाएगा. दे आर कॉल्ड इनहिबिटिंग हार्मोन. सो हार्मोन रीचेज द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी. हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग, गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग, मेलाटोनिन रिलीजिंग हार्मोन, मेलाटोनिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन. Now we have a pituitary gland which is called master gland. They are located on the bone which is called sella turcica, which is divided into the adenohypophysis, the neurohypophysis. Adenohypophysis pars distalis and pars intermedia, that is the anterior pituitary. Pituitary gland considered the master gland. Origin is ectodermal. Growth hormone somatotropin ये ग्रोथ करता है, बेसिकली एपिफिजियल कार्टिलेज होता है जिस पे ये काम करता है, बोन के साइज को बढ़ाएगा. बोन के साइज बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हाइट बढ़ जाएगा. प्रोटीन सिंथेसिस, कैल्शियम रिटेंशन इन द बोन एंड ग्लाइकोलिसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ फैट. Growth hormone, low secretion of growth hormone, high secretion of growth hormone. Stunted growth result in dwarfism. High secretion of growth hormone in children before epiphyseal closure is gigantism. In adult after epiphyseal closure acromegaly. Acromegaly हो सकता है. Growth hormone stimulate the hepatocytes and release glucose into the blood, and this respect to the growth hormone in insulin antagonist, and that can be related to the diabetic effect. ACTH, adenocorticotrophic hormone. ACTH control the structure functioning adrenal cortex, especially the secretion of glucocorticoid from the adrenal cortex. हाइपोसिक्रेशन एडिशन डिजीज होगा और हाइपर सिक्रेशन में कशिंग सिंड्रोम हो जाएगा. प्रोलैक्टिन के बारे में बात करें तो दे रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड and milk production. They activate the growth of the breast during the pregnancy and secrete the milk from the mammary gland after the childbirth. Thyroxine stimulating hormone TSH ये थायराइड के ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. और FSH के बारे में बात करें तो मेल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा, फीमेल में दे स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स. एस्ट्रोजन हार्मोन प्रमोट द oogenesis. LH मेल में करता है. LH is also called ICTH, interstitial ICSH, interstitial cell stimulating hormone, which stimulate the testes for the formation and secretion of androgen, which is testosterone. Testosterone ultimately they supporting the spermatogenesis, while the female LH luteinizing surge, LH surge होता है जो ग्राफिन फॉलिकल्स को रप्चर करने में मदद करता है, ओवुलेशन कराता है. Now melanocyte stimulating hormone middle lobe. MSH is melanocyte which contain the melanin pigment and regulate the pigment of the skin. They stimulate the synthesis and secretion of disperser of melanin pigment. It control the body color of birds and control the human and its secretion during the sunlight. Okay. Now the hormone releases by the posterior pituitary. दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH. ऑक्सीटोसिन को मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी करते हैं, बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है. They cause the relaxation of sphincter present around the nipple and milk उससे बाहर निकल जाता है. It is a non-peptide hormone which is secreted by the hypothalamus but released from the posterior lobe. ADH is also called antidiuretic hormone. Vasopressin. ADH is causes the increase the reabsorption of water and collecting duct, DCT.
ADH की कमी होगी तो यूरिन का अमाउंट बढ़ेगा, लेस वाटर इंक्रीज ADH. Now they have a thyroid hormone which is the largest gland. They are butterfly in shape. They are present on the lateral side of the trachea और lateral side of trachea में देख पा रहे हैं, और ये जिससे जुड़ता है वो isthmus होता है. Follicular cells are stromal cells. They are present on the follicular cell. T4 and T3 प्रोड्यूस होता है. बोथ T3 and T4 आयोडाइज फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स. T3 बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है T4 से. T4 सिक्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू फाइनली T3 in a peripheral tissue like liver. Synthesis of thyroid hormone required iodine, and the hormone are released under the influence of TSH, released by the anterior pituitary. What is the function of thyroid hormone? Thyroxine, metabolism of protein, fats, carbohydrate, hence they regulate the growth of the body tissue. Regulation of basal metabolic rate, enhance the heat production, calorigenic effect होता है. Mental health, enhance the some action of neurotransmitter, adrenaline and non-adrenaline. वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है और इनडायरेक्टली इरेथ्रोपोइसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को भी करता है. इसकी कमी हो जाएगी तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा. हाइपोथायराइडिज्म अगर बच्चों में होएगा तो क्रिटिनिज्म कहते हैं, फेलियर टू थायराइड सिक्रेशन फ्रॉम इन्फेंसी. इसका ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट रुक जाएगा. और अडल्ट में होगा मिक्स एडिमा, गस डिजीज हो जाएगा, पफी अपीयरेंस एंड लैक ऑफ अल्टरनेस इंटेलिजेंट, लो मेटाबॉलिक रेट, ये सारा चीज़ हो जाएगा. आप इसे फोटो भी देख सकते हैं. हाइपरथायराइडिज्म इज बेसिकली कैंसरस सिनेरियो में होता है. द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज इन abnormal हाई लेवल leading to the condition called hypothyroidism. Hypothyroidism is due to the cancer of the thyroid gland. Exothalamic goiter and Graves' disease. Thyroid enlargement is accompanied by the bulging of eyeball, and enlarged thyroid is overactive and secrete the passive amount of thyroid hormone. Most common in female, high metabolic rate, rapid heart rate, nervousness, irritability, tremor हो जाएगा, हाथ ऐसे ऐसे हिलने लगेंगे, restlessness होगा. हाशीमोटो डिजीज इज ऑटो इम्यून डिजीज होता है, अपने ही सेल के खिलाफ काम करता है. पैराथायराइड, जब हम थायराइड के अंदर जाएंगे तो पैराथायराइड हमें नजर आएगा, और ये 4 in number होते हैं बट कैन बी मोर ओवल एंड कॉन्सेप्ट. दे आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड. Chief cell, mainly secreting cells, they secrete the parathyroid hormone PTH, and Colles hormone कहा जाता है, and oxyntic cells, they are non-secreting cells, they are stained by the acidic. तो ये क्वेश्चन आता है PTH का क्या काम होता है. they regulate the circulating level of calcium in the blood. और ये क्या करता है कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा. कैसे बढ़ाएगा? ये रीनल ट्यूब्यूल्स को कहेगा कि कैल्शियम को खींचो, रीअब्जॉर्ब करो. ये इंटेस्टीन को कहेगा कि तुम भी डाइट से कैल्शियम को खींचो, और बोन से भी ये कैल्शियम को खींच लेता है तो बोन को बहुत वीक बना देगा. ठीक है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल, और बोन बिल्कुल रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे. तो इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द ऑप्टिमम कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, बिकॉज द कैल्शियम वन सेकेंड because the calcium is essential for the functioning of the muscle cells, heart, nerves, growth and bone, teeth. Calcium is also essential for the blood clotting. Disorder अगर होगा तो hypothyroidism. Hypothyroidism was hypocalcemia. They decrease the amount of calcium in the extracellular fluid due to the muscle relax, fail, tetany भी हो सकता है. हाइपरपैराथायराइडिज्म के बाद में बात करें अगर, तो पैराथायराइड ट्यूमर सिक्रीट करेगा इससे ज़्यादा हार्मोन, इंक्रीज द mobilization of bone minerals into the bone and softening the bones, increase the concentration of calcium ion in the plasma, deposition of calcium in the kidney, that causes the renal stone. एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं. इसे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है. दे आर पेयर ग्लैंड लोकेटेड ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी. ईच एड्रिनल ग्लैंड हैज़ अ 2 part, इंटरनल एड्रिनल ग्लैंड, एक्सटर्नल एड्रिनल ग्लैंड. Adrenal cortex derive from the mesoderm of the embryo, and they divided into the 3 layer. Zona glomerulosa, outermost layer of adrenal cortex. Zona fasciculata, middle layer of adrenal cortex, और zona reticularis नीचे वाला लेयर होता है. ये 3 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड. मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करता है, और ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा हमारे बॉडी में.
अब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा और ये हमारे डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा, जिससे सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में मदद करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे आर सेक्रेटेड बाय द जोना fasciculata ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स। दे रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरोन होता है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, ग्लूकोज का बनना फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। लिपोलाइसिस ब्रेक डाउन द फैट स्टोर इन द adipose tissue. Proteolytic break down the protein. Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system and kidney function. Cortisol produce anti-inflammatory reactions and suppress the immune response. Glucocorticoid, mineralocorticoid, zona fasciculara under the stimulation of ADH control the carbohydrate metabolism. Glucocorticoid are anti-inflammatory or anti-allergic. They secrete the zona glomerulosa under the stimulus of the angiotensin system, mainly control the electrolyte and water balance of the body. एड्रेनल मेडुला के बारे में बात करें, इनर टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है। इसे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। दिस हार्मोन इज प्रिपेयर ड्यूरिंग द फाइट, फ्लाइट, फियर। हार्मोन इंक्रीज द हार्ट रेट, स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कंट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। कैथेकोलामीन स्टिमुलेट द ग्लूकोजन, दे ब्रेक डाउन द ग्लूकोज resulting in increase the concentration of glucose in the blood. Adrenal cortex, adrenal medulla, they form a 75% of adrenal gland और ये 25% बनाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इससे सिक्रेट होता है, इससे नॉन एड्रेनिन और एड्रेनलिन सिक्रेट होता है। Now we have a pancreas. Pancreas having the mixed gland, exocrine part, endocrine plant. हम यहाँ पे एंडोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे जिससे दो हार्मोन सिक्रेट होंगे, ग्लूकागन एंड इंसुलिन। अल्फा सेल सिक्रेट अ ग्लूकागन और बीटा सेल सिक्रीट द इंसुलिन। अल्फा सेल ग्लूकागन सिक्रीट करेगा। ये ग्लूकागन जो होता है हमारे लिवर सेल को स्टिमुलेट करेगा, जिससे ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाएगा, मतलब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा ग्लूकागन की वजह से। इंसुलिन क्या करेगा, उस इंसुलिन ब्लड जो ब्लड में ग्लूकोज है उसे पेरिफेरल टिश्यू में कन्वर्ट कर पेरिफेरल टिश्यू में ट्रांसफर कराएगा। तो बीटा सेल सिक्रीट करेगा। बीटा सेल प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन विच इज कॉल्ड इंसुलिन विच रेगुलेट द ग्लूकोज होम्योस्टेटिस। ये क्या करेगा, एडिपोज टिश्यू, हेपेटोसाइट, मसल सेल को करेगा, कहेगा कि आप यूज़ करो ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर है। सो व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज इंक्रीजेड, द बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज गेट स्टिमुलेटेड एंड रिलीज इंसुलिन। अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द लिवर सेल, मसल सेल, और अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द रेस्पिरेशन एंड फैट सिंथेसिस इन एडिपोज टिश्यू। हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, एक्सेस ग्लूकोज इन द बॉडी, हाइपरग्लाइसीमिया, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, दे लीड टू द डायबिटीज mellitus. Loss of glucose from the urine, formation of ketone body, and excess thirst, polydipsia, polypepsia is a characteristic feature. Now, pineal gland. It is also called epiphysis, located on the dorsal side of the forebrain. Their stalk-like structure is called pineal stalk, and this gland is called third eye. They secrete the melatonin, which is regulate the 24-hour rhythm of our body, evening and throughout the night, and drop down into noon. They maintain the sleep-wake cycle and maintain the metabolic body temperature, pigmentation of skin, menstrual cycle, defense capability of skin. Melatonin form the delay puberty and human by opposing the action LH and FSH. थाइमस के बारे में बात करें तो हार्ट के पास आप देख पा रहे हैं लोकेशन, ये थाइमस है। इसे थॉर्न्स ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम यहीं से काम करता है, टी सेल, बी सेल यहीं से निर्मित होता है। दे कंसिडर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर द डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइड इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, थाइमोसिन सिक्रेट करता है जिससे बी लिम्फोसाइड एंटीबॉडीज वगैरह बनता है। थाइमस इज कवर बाय आउटसाइड द कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला होता है। हेसल कॉर्पिक्यूस कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड रहता है। टेस्टिस आप 12th क्लास में मैंने पढ़ाया ही है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्क्रोटल सेक। टेस्टिस में देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल्स और लेडिक सेल्स। दे सिक्रीट द टेस्टोस्टेरोन which is provided the secondary sexual character and स्पर्मेटोजेनिया के लिए, स्पर्मेटोगोनिया के लिए जाने जाते हैं। ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन सिंथेसाइज सिक्रेशन ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स। प्रोजेस्टेरोन आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट द प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, और ये सारा काम होता है। हार्मोन ऑफ हार्ट,
atrial wall of heart secreted the peptide hormone called atrial natriuretic factor. They decrease the blood pressure, increase blood pressure, ANF रिलीज होगा और बीपी को मतलब ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, बीपी कम हो जाएगा. किडनी से एराइथ्रोपोइटिन सिक्रीट होता है जो कि हार्मोन मतलब आरबीसी बनाएगा. और जीआईटी से गैस्ट्रिक ग्लैंड दे सिक्रीट दे स्टिमुलेट द एचसीएल एंड पेप्सिनोजन. सिक्रेटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पोर्शन और they stimulate the water and bicarbonate ion. CCK they act on the pancreas and gallbladder. ये पेंक्रियाज जो है पेंक्रियाटिक एंजाइम और गॉल ब्लैडर से करेगा. GIP inhibit the gastric secretion and motility. That's all. Thank you so much.